मिस्टर अल्ताफ अहमद वानी साहब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर होगा, मैं टाइम दे दूंगा। सर, EQ number 186. मिनिस्टर इन चार्ज फॉरेस्ट। Sir, EQ number 186. During the last 2 years, no objections are taken. NOC for construction of residential houses have been issued in any of the district of the Union Territory of Jammu and Kashmir except District Anantnag. In District Anantnag, during the period from January 2024 and December 2025, the Office of the Wildlife Warden, South Division received 349 applications from Pahalgam Development Authority, Subdivisional Magistrate Pahalgam and Block Development Officer Pahalgam for issuance of no objection certificate for the construction of the residential houses by bona fide local residents. After due scrutiny and field verification, the report recommending NOCs were issued in respect of the 346 applications. 2 applications were rejected due to non-submission of required documents. In one case, the report already issued was withdrawn as the proposed site falls within the Ora Wildlife Sanctuary, which is regulated under provision of Wildlife Protection Act 1972. Part B, sir. Categories and division-wise detail of the employees workers are as under. वो details सब दे दिए. Part C. The salaries and wages employees has been paid time to time and no arrears are pending. The current funding status of the Wildlife Department as under. तो ये डिटेल दे दी है सर ये. थैंक यू सर. ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये वाइल्ड लाइफ ऑर्डो सेंचुरी की बात है सर. सर, मैंने ये पूछा था ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कि रेजिडेंशियल बिल्ट अप एरियाज में रेजिडेंशियल, क्योंकि आड़ो में बस्ती है. इट इज फ्रॉम आउरा से लेके आउरा, लंगनबाल, खेलान, मामल और आड़ो है. सर स्पीकर साहब, 349 एप्लीकेशंस आई है, 349 सर. सर बदकिस्मती की बात है सर, आपके सामने बताना चाहता हूं सर, 346 कमर्शियल डिपार्टमेंट कमर्शियल को दे रहा है, लेकिन रेजिडेंशियल को परमिशन नहीं दे रहा है. मैंने आपसे अदबन गुजारिश करता हूं सर, आपके सामने डॉक्यूमेंट रखता हूं सर. 13/8 को एनओसी इशू होती है, 13/8/2025 सर, और 14/10 को सेम वही बंदा वाइल्ड लाइफ वार्डन खुद ही एनओसी रिजेक्ट करता है. ये जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि रिपोर्ट, इट इज नॉट रिपोर्ट सर, इट इज एनओसी. ये स्पीकर साहब को दे. एनओसी इशू हुई है 13/8 को वाइल्ड लाइफ वार्डन, 14/10 को एनओसी रिजेक्ट करता है, नॉट रिपोर्ट सर. एक दूसरा, मैंने मिनिस्टर साहब से आदमन गुजारिश करता हूं, क्या जहां पे रेजिडेंशियल हाउसेस जहां पे रहते हैं लोग, रहते हैं, बसते हैं लोग, क्या आप उनको वाइल्ड लाइफ से हटाना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी जामिया पॉलिसी है जहां पे वाइल्ड लाइफ में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या आपने मुसवदा रखा है सर? प्लीज सर, आप इसको देखिए, उसके बाद मैं पूछता हूं सर. सर, ऑनरेबल एमएलए साहब का जो ये इशू है, ये मेरे नोटिस में है. ऑलरेडी मैंने इसको स्टडी भी किया है और काफ़ी बार ये इसका जिक्र भी हुआ है. ये एक डिटेल है, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं ये पढ़ के सुनाऊँ. जस्टिफिकेशन नोट फॉर रिवोकेशंस एंड ऑफ एनओसी रिकमेंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इनसाइड ओरा Aru Wildlife Sanctuaries. The application of Shri Altaf Ahmad Wani, Aro Ash Makam, Pahalgam was received in this office from the Office of the Chief Executive, Pahalgam Development Authority, Pahalgam, through online building permissions portal for grant of NOC for construction of residential house in Aru, Pahalgam. At the time of receipt and initial proceeding of the application, the exact geo or special locations of the proposed construction site was not clearly specified. इसमें क्लैरिटी सर नहीं थी उस वक्त. Based on the preliminary field inputs and incomplete location particulars furnished by the applicants,
This office essentially forward a field report recommendation to the concerned authority. Subsequently, a detailed field inspection and verification was conducted by the field staff of the division. During the said inspection, the proposed site for construction was conceivably found to be falling within the notified boundaries of the Aura Wildlife Sanctuary, the protected area declared under the provision of the Wildlife Sanctuary Protection Act 1972. In view of the above factual position, it became evident that the earlier recommendation was made under an incorrect factual premises owing to non-disclosure, absence of price location details at the initial stage. Once the correct legal and special status of the land was established, the continuation of the said recommendation was found to be untenable in law. As the revised guidelines dated 21st July 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, any activity performed inside a wildlife sanctuary attracts the provision of Section 29 of the Wildlife Protection Act 1972 and required mandatory consultation with the State Board for Wildlife recommendation of the Standing Committee of the National Board for Wildlife in addition to the compliance with the direction of the Honorable Supreme Court of India. सर मैंने जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से खत्म करेंगे खत्म किया आपने अभी सब थोड़ा सा रह गया एक Under Section 29 of the Wildlife Protection Act 1972, amended up to the 2022, explicitly prohibits construction, damage or diversion of the wildlife habitat within the sanctuary by any act whatsoever, except under permit granted by the Chief Wildlife Warden, and that too only when the state government, in consultation with the National Board for Wildlife, is satisfied that such activity is necessary for the improvement and better management of the wildlife. Construction of the private residential house does not fall within the permissible exceptions envisaged under the said provision. Honorable Supreme Court of India wide order number 9 as further mandated that the non-forestry or development activities within protected areas require prior recommendation of the Standing Committee of the National Board of Wildlife. सर ऑनरेबल स्पीकर साहब सर ये जो जवाब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब पढ़ रहे हैं सर ये मेरे पास नहीं है मैं आप भी देख लीजिए जवाब क्या लिखा सर सबमिशन सर मैंने पूछा था जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एरिया में जो विद इन द लाइफ वाइल्ड लाइफ आते हैं उन लोगों के बारे में इन्होंने क्या सोचा है क्योंकि वहाँ पे बस्तियाँ हैं मेरे सवाल का तो जवाब आया ही नहीं मैं कह रहा हूँ आड़ो देखिए सर ओबूरा में लोग रहते हैं बस्तियां हैं खलन में है मामल में है और आड़ो में है मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं अगर वहां पे पॉपुलेशन है प्रॉपर्टी लैंड है वो वाइल्ड लाइफ के अंदर अगर आता है विद इन द जोन आ जाता है तो उन लोगों के बारे में क्या सोचा वो कैसे घर बनाएंगे सर जबकि ऑलरेडी देयर इज ए लॉ दैट द बिल्ड जो रेजिडेंशियल हाउसेज है उनको वो कैंसिल नहीं कर सकते दे हैव टू इशू द एनओसीज मैंने अदबन गुजारिश आपसे की कि इनके डिपार्टमेंट ने एनओसी इशू की फिर किन बुनियादों पे रेजिडेंशियल हाउस का उन्होंने वो ये कहते हैं रिपोर्ट दैट इज नॉट रिपोर्ट मैंने आपको भेज दिया इट इज एनओसी इट्स नॉट रिपोर्ट सर फिर किन बुनियादों पे क्या वजूहत होगी 2 महीने के बाद इन्होंने उसी वार्डन ने वो कैंसिल किया मेरा सवाल है ये एक हो गया मेरा क्वेश्चन ये है सर जो वहाँ पे लोग रहते हैं आड़ो पहलगाम में जो लोग रहते हैं वो कहाँ से घर बनाएंगे सर जो मामल में रहते हैं उनके बारे में कौन सी पॉलिसी डिपार्टमेंट में इख्तियार किया तो मेरे से 2 पॉइंट्स है एक जिससे एनओसी इशू यहाँ मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ आप यहाँ से एक टीम भेजिए ये जो 349 है 349 इसकी वेरिफिकेशन करिए 346 अगर आप जो पुराने 6-7 साल में वहाँ पे बड़े स्ट्रक्चर्स बने हैं मास कंस्ट्रक्शन हुई है वाइल्ड लाइफ इसमें उसकी आप वेरिफिकेशन कराए सर उनको डिपार्टमेंट ने कैसे एनओसीज दी कमर्शियल को और रेजिडेंशियल को किन बुनियादों पे इन्होंने रिजेक्ट किया और किन बुनियादों पे नहीं देते हैं सर जो एरिया इको सेंसिटिव जोन में आता है सर उसमें प्रोविज़न है एक डिविजनल कमिश्नर लेवल पे एक कमेटी बनाई है जो इसको ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फील्ड स्टाफ इसमें एसडीएम है और बीडीओज हैं ये
एक रिकमेंडेशन करते हैं इको सेंसिटिव जोन में, उसमें डिविजनल कमिश्नर जो है वो एनओसी जारी करते हैं और फिर वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है। एक मिनट सुने ना ऑनरेबल, जवाब देने दो। आपको ऑनरेबल आपको तसल्ली होगी तो क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो कमर्शियल के लिए भी सर एक प्रोविज़न है और उसको नेशनल बोर्ड जो है, जो स्टेट हमारा वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, ये रिकमेंड करता है, नेशनल बोर्ड जो है उसको एनओसी इशू करता है। जहाँ तक ऑनरेबल एमएलए के खदशात भी हैं और इनका जो कहना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में कुछ बस्तियाँ हैं, बस्तियाँ सर ज़रूर हैं और सरकार कभी उन बस्तियों को उजाड़ने के मूड में नहीं होती है। सरकार हमेशा एक उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के हक में रहती है, उनकी जो सलामती के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हर मुमकिन इकदाम सरकार उठाती है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि ऑनरेबल एमएलए साहब के जो खदशात हैं और जो मैंने ये डिटेल में दिया है कि जब एप्लीकेशन आई उसमें जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो जो प्रपोज कंस्ट्रक्शन के लिए वो सही नहीं पाई गई, तो उस पर हमारे जो वहाँ लोग थे उन्होंने उसको इशू किया पहले और बाद में विड्रा किया जब ये पूरा डिटेल उनके सामने आई। तो मैं ये गुजारिश करूँगा ऑनरेबल साहब को, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ इस केस को मैं पर्सनली री एग्जामिन करूँगा। अगर ये केस फिट हुआ तो मैं इंशाल्लाह एनओसी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूंगा कि एनओसी जारी करें। ओके, हो गया। अब आपको एक्सपीरियंस आ गया। जो टोल लगा है आड़ो वाइल्ड लाइफ पर हेड, वहां पे 25 रुपए लेते थे आड़ो में जो टूरिस्ट जाता था। आज के डेट में पर हेड इन्होंने एब्रप्ट रेज किया इसको अप टू 100 रुपीज पर हेड। तो मेरा अदबन गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। सवाल में नहीं आता है, ये सप्लीमेंट्री नहीं बनता। नाउ मिस्टर खिलाल अकबर लोन साहब। It is AQ number 989. Minister in charge Public Works. Honorable Speaker, sir, AQ number 989. No such request or demand has been received and no such proposal is under consideration in the department. सर, जो अजस तहसील है ये एक बहुत बड़ी तहसील है सर, बहुत दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जो उसकी सड़कें हैं बड़ी खस्ता हालत में हैं। कई दहाइयों से ये बिल्कुल इग्नोर हुआ है सर, ये पूरा ही तहसील, ना इसमें आरडीडी ब्लॉक है, ना इसमें सेपरेट एजुकेशनल जोन है। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल डिवीज़न क्रिएट किया जाए इसमें अजस तहसील में, और बाद में इसको फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा दे सकते हैं हम। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मिनिस्टर साहब इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ये अगर एश्योरेंस देंगे मुझे कि आने वाले वक्त में एक स्पेशल डिवीज़न क्रिएट किया जाए इसमें अलमिया ये है सर, ये एक तो जुरिडिक्शन के हिसाब से ये बांडीपुरा में भी आता है सब डिवीज़न, ये डिवीज़न बांडीपुरा जो है इसका, और दूसरा सुबल में आता है, और दोनों एतराफ़ से ये टेल एंड पे आता है, इसलिए इग्नोर किया जाता है सर। सो मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा इलाका है सर, इसमें अगर सब डिवीज़न होगा तो प्रॉपर जो पेस ऑफ वर्क एंड सुपरविजन होगा वो फिर पेस ऑफ वर्क भी ठीक होगा और सुपरविजन भी प्रॉपर रहेगा सर। मैं चाहता हूँ कि ऑनरेबल मिनिस्टर मुझे एश्योर करे कि आने वाले वक्त में एक स्पेशल डिवीज़न क्रिएट किया जाए और बाद में ये फुल फ्लेजेड स्टेट भी दे सकते हैं सर। अभी तो सब डिवीजन भी नहीं है तो स्पेशल कैसे बनेगा सर? स्पेशल डिवीज़न इट मीन्स that temporary division, not a special. It means a temporary subdivision. Okay. That's called a special division in PWD department. Special division Special division is special subdivision, sir. Special subdivision. अच्छा, Honorable Speaker, sir, basically ये 16 अगस्त 2023 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, और उसमें जब पहले जो ये बांडीपुर का था, पहले यहाँ पे 2 डिवीज़न थी। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ पे 3 सब डिवीज़न हुई। बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन आरएनबी डिवीज़न बांडीपुर था, आरएनबी डिवीज़न सुंबल था। जब दोबारा हमने रीऑर्गेनाइजेशन की तो उसके बाद 3 डिवीज़न, आरएनबी डिवीज़न बांडीपुर, आरएनबी डिवीज़न सुंबल, आरएनबी डिवीज़न गुरेज बनाई गई। उसके बाद सर जो सब डिवीज़न थी रीऑर्गेनाइजेशन से पहले
वो दो थी, आरएनबी सब डिवीज़न बांडीपुरा, आरएनबी सब डिवीज़न सुंबल। आज की डेट में सर वहाँ 6 सब डिवीज़न हैं। सब डिवीज़न बांडीपुरा, सब डिवीज़न आलोसा, सब डिवीज़न हाजिन, सब डिवीज़न सुंबल, सब डिवीज़न बख्तूर, सब डिवीज़न गुरेज। इससे पहले क्या हुआ करता था कि स्पेशल डिवीज़न गुरेज के लिए होता था, जो कि आज स्पेशल डिवीज़न नहीं है। जहाँ तक ये आजस एरिया की जिक्र कर रहे हैं सर, ऐसा वहाँ पे जो सुंबल हमारी डिवीज़न है और सब डिवीज़न जो हमारी हाजिन है, वो उससे पूरा उनकी जो डिमांड है वो कैटर हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब नई कोई डिवीज़न वहाँ डिवीज़न या सब डिवीज़न बनाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी ऑनरेबल एमएलए साहब अगर कुछ अपनी कोई सजेशन देते हैं तो इसको हम एग्जामिन करा लेंगे सर। सर ठीक है सर, जो इसके जवाब है बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ इसके जवाब से। जो जवाब में मिला है सर, नो सच रिक्वेस्ट डिमांड हैज बीन रिसीव्ड एंड नो सच प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन इन डिपार्टमेंट। इट इज सब्जेक्ट टू द मेकिंग ऑफ अ डिमांड और डिमांड आई विल बी मेकिंग अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बिफोर। अब जब आपने सवाल पूछा, यही हम डिमांड तस्वुर करेंगे एंड मिनिस्टर साहब हैज अश्योर्ड यू दैट ही विल एग्जामिन दिस डिमांड, ही विल एग्जामिन इट। क्वेश्चन नंबर 3। कहाँ? सर क्या? इसके ऊपर सप्लीमेंट्री है मेरा। ना इस पर सर ये नहीं क्या सनवारी की आप अजस के बारे में पूछना ना मेरी बात सुनो, आप अजस के बारे में पूछना चाहते हो? नहीं आपका नहीं, आपका इसमें नहीं आएगा। नहीं सुरजीत सिंह सलाचा साहब, AQ number 799. मिनिस्टर इन चार्ज रेवेन्यू। AQ number 799. Part A. There is no such proposal under consideration in this department. Part B. There is no such proposal under consideration in this department. Part C. There is no such proposal under consideration in this department. Honorable Speaker Sir, ये मैंने क्वेश्चन जो पूछा था इसमें A, B, C तीनों में नो ही नो है, तो हम भी नो ही है सर। सवाल इस बात का है कि ये जनाब CLU का इशू है। बहुत सी परेशानियां हैं लोगों को सर कि एक मकान बनाने के लिए भी आपको अपना घर बनाना है, उसके लिए भी आपको CLU कराना है। एक दुकान बनानी है उसके लिए, या तो इसको मखसूस एरिया टाउन एरिया के अंदर रखा जाए। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर रूरल एरिया आल्सो सर, कि अगर आपने मकान बनाना है उसके लिए भी CLU चाहिए, अगर आपने फैक्ट्री लगानी है उसके लिए भी CLU, जो पुरानी बनी है उनके लिए भी CLU चाहिए। और मोरोवर इसकी ना फीस स्ट्रक्चर जो है इतना ह्यूज है कि आप इतने से ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। यहाँ पे इतना रेट इसका हाई है। मैंने कहा था या तो इसका रेट कम किया जाए या इसको सिंप्लीफाइड किया जाए। अगर CLU कराना है तो 18 डिपार्टमेंट्स और NOC चाहिए, तो एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये अगर इस कानून बन गया है तो क्या कानून को हम दोबारा इसके ऊपर नज़रसानी नहीं कर सकते? ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। सर, ऑनरेबल मेयर साहब ने चीज़ों का इजहार किया। मैं ये सब जो मैं समझता हूँ सर, एक समाज जो है वो एक कलेक्टिव सोच से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है। और इससे पहले भी जो जितनी भी सब्सिडीज़ और ये आदतें जो हैं हमारे समाज की, सोसाइटी की यहाँ ख़राब हुई हैं, तो उसके कुछ खातर खा नतायज जो है बरामद नहीं हुए। तो ये जो एक इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक बड़े पैमाने पे इस लैंड यूज़ का मिसयूज़ हुआ है, इससे पहले भी होता रहा है। तो एक सरकार ने एक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये सब सिस्टम शुरू किया है और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जहाँ भी सरकार ये समझती है कि इस सिस्टम को ठीक करना है या इस सिस्टम के लिए कुछ नई चीज़ लानी है, वो सरकार जो है वो लाती रहती है। कंटिन्यू प्रोसेस है सरकार के पास। फिलहाल मैंने जवाब दे दिया सर, सरकार की तरफ से अभी हमारे पास ऐसा सच कोई प्रपोजल है नहीं। लैंड यूज चेंज
पिछली बजट सेशन में भी टेकअप हुआ था। अब ये रेवेन्यू का इशू नहीं रहा सर, इसमें इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, शायद इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब मेरा सुन लें, इसमें जंगलात भी इन्वॉल्व है। सर कहने का भाव ये कि जो हथियार बाबुओं ने चलाए, अगर आप भी उन्हीं पे काम कर रहे हो, आप में और में फ़र्क क्या है? ये बाबुओं का चलाया हुआ हथियार है, इसको सर ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसको स्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। रेट्स इतने हैवी हैं सर, जेडीए की ग्राउंड की ज़मीन का रेट कम है और सीएलयू करवाने के लिए रेट ज़्यादा है। आई विश सर कभी मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जिनका बठिंडी में एक आशियाना है, ये उसको मॉडिफाई करना चाहे, ये नहीं कर सकेंगे अगर इन्होंने सीएलयू नहीं करवाया तो, और ये सीएलयू करवा नहीं पाएंगे। खैर इनको किसने मना करना है, ये तो अफसर खुद ही कर देंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, ये सीएलयू आम व्यक्ति के लिए सर नासूर बन चुका है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां आपने कल पता नहीं क्या कुछ बांट दिया, उसमें सीएलयू को डालिए ताकि इंडस्ट्री बचे। आज सर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 20, 25, 30 साल पहले लगी इंडस्ट्री को रिन्यू नहीं कर रहा है। मंत्री साहब को पता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सीएलयू से कोई लेन देन नहीं है। सीएलयू ही या तो रेवेन्यू वाले का इशू है, तो भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को क्या मतलब है? तुमने जब यूनिट लगाया तुमने उसको परमिशन दी, आज वो 20 साल के बाद आपके पास आ रहा है, आप कह रहे हो सीएलयू करवा के लाओ। सर ये गुंडागर्दी है, इसको सरकार ऑन करे। तशरीफ रखिए। पहले इसने पूछा आपकी बात आ गई। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो सलातिया साहब का प्रश्न है इसको रिविजिट तो करना चाहिए, मगर जो मंत्री साहब ने कहा, कहते हैं कि मैंने जवाब दे दिया है, और इन्होंने एक शब्द यूज़ किया कि मिसयूज़ को रोकने के लिए हमने सीएलयू लाया। मैं बताऊं फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस हाउस, मेरे कठुआ में, तनवीर सुन लो, मेरे कठुआ में सर 5000 कनाल लैंड सीएलयू हो गई, और उस 5000 कनाल, मिसयूज़ की बात बता रहा हूँ, 5000 कनाल लैंड में बीच रकबा सरकार है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रीज ने, इन्होंने सीएलयू मिसयूज़, पहला तो ये हुआ। दूसरा, जो लोकल आदमी जिसने इंडस्ट्री लगानी है, उसमें से कितने केसेस हैं उनके इन्होंने सीएलयू किए। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। मेरे उधर एक गांव है मखसूसपुर, पहले उसकी किस्म चेंज की गई, 500 से 700 कनाल, पूरा गांव उन्होंने लैंड यूज चेंज कर दी, इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति कौन है, यहाँ का बहुत बड़ा अफसर है, 500 कनाल जगह ली, 3-4 लाख कनाल में, फिर 12 लाख में बेची। ये मिसयूज नहीं है तो और क्या है? अब सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि इस पॉलिसी में इसको रिविजिट करना चाहिए और सीएलयू की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो चेंज करनी चाहिए। पठानिया साहब। स्पीकर से मेरा हम्बल सबमिशन है, सलाथिया साहब ने एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक विषय हम सबके ध्यान में लाया है। इसका इंटेंट जो है, जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, उनका आई डोंट जॉइन द इशू विद हिम, इसका इंटेंट बिल्कुल ठीक है कि फ्रॉड को कंट्रोल करना है, स्ट्रीमलाइनिंग करना है, बट ये हमें मानना चाहिए, एक्सेप्ट कि बहुत बड़ा एक स्कैंडल सीएलयू के साथ चल रहा है। सीएलयू में लोगों को दी ईज ऑफ हम कह रहे लिविंग, लोगों का भी ईज ऑफ लिविंग ऑब्स्ट्रक्ट है, और ऑफिसर साहिबान भी किस का करेंगे, कितने दिन में करेंगे, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में ग्रे एरिया। मेरा हम्बल सबमिशन है, इस सवाल के माध्यम से इस हाउस को रिजॉल्व करें और सरकार इसमें इमीडिएट इकदाम में आए। और जो माननीय जसरोटिया साहब ने कहा, दिस इज ए वेरी सीरियस इशू, ए वेरी सीनियर ऑफिसर, ही इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दैट, और इसका बिल्कुल डिटेल्ड एक इंक्वायरी होना चाहिए, इरेगुलरिटी होना चाहिए। वेरी सीनियर ऑफिसर सिटिंग एज द हेड ऑफ ए प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, ही हैज बीन मैनेजिंग द अफेयर। सर आप कुछ पूछना चाहते हो? सर, ये मैं समझता हूँ कि पूरे हाउस का ये कंसर्न है जो मैंने सवाल किया है, ये सबके लिए मेरा ये मानना है कि मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस कानून में कोई तब्दीली लगा के कुछ लोगों को अगर आप राहत दे सकते हैं तो देने की कोशिश करें। जवाब नो में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून बदलते रहते हैं, कानून हर वक्त पे उसकी मुताबिक किया जाता है। अगर हम ये सोचें कि एक आदमी, जिस आदमी ने ऑनरेबल स्पीकर सर 10 मरले या 1 कनाल ज़मीन या 2 कनाल ज़मीन किसी ने लेनी है, उसके लिए 18 डिपार्टमेंट से जाके उस इंसान का क्या हाल होगा। और ये करप्शन या तो एक जगह से हो, आप 18 जगह देखे
जिसका CLU बनना है उसकी क्या दवाई है, क्योंकि ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ मसला है। आपने इतनी राहत की घोषणा की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत रिलीफ मिला इसमें, लेकिन क्या ये लोगों का जो इशू है इसमें कितना बड़ा रेवेन्यू में फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर हम इसको फ़ीस को एग्जम्प्ट करें। मैंने ये कहा था या तो इसकी फ़ीस ना लें या CLU जो है वो सिर्फ एक कंसर्न डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू है वो दे। जब हमने 18 डिपार्टमेंट से NOC लेके फिर CLU लेना है तो एक इंसान कितने ऑफिस में जाके ये करेगा। इसके साथ साथ दूसरी ये बात है कि या तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है 16 लाख रुपया कनाल CLU, कौन आदमी पे करेगा? 16 लाख, ये तबाही नहीं और क्या है? उन लोगों ने क्या फैसला किया हम उसमें नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हाउस से मेरी विनती है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठेगी, इसको दोबारा रिविजिट किया जाए और इसके मुताबिक जो है लोगों को राहत मिलनी चाहिए। सर, कुछ चीज़ें जो हैं हमें पिछले 5-7 साल के इस अंधेर नगरी के इस दौर में विरासत में मिली हैं और इस पे ऑनरेबल MLA साहब की सजेशन भी सर आई है, इसको भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। ठीक। मैं हाउस की जानकारी के लिए इतना सर कहूँ कि देयर इज़ ए सेट प्रोसीजर, इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और विद इन प्रिस्क्राइब टाइम जो है उसकी NOC जो है वो देनी ही देनी है। डिप्टी कमिश्नर लेवल पे NOC जब देते हैं तो ऑनलाइन अगर वो नहीं मिलती है उस डेट के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली उसको NOC तस्वर किया जा सकता है सर। तो इसमें मैं ये गुजारिश करूं सर, जो मैंने पहले कहा था कि मिसयूज़ होता है, आपने देखा होगा कि कश्मीर में और जम्मू में हर जगह पे इरिगेटेड लैंड को जो है वो लोग जो है कॉलोनीज बन रही हैं, ज़मीनें जो हैं वो बुरी तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक सिस्टम जो है ये स्टार्ट किया है, सरकार उसको देख रही है। इसमें बेहतरी लाने के लिए सरकार हमेशा, मैंने पहले भी कहा कि सरकार हमेशा पब्लिक फ्रेंडली फैसले करती है और इसमें कुछ अगर फ्लाज हैं तो हम उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपको आया एक एश्योरेंस। मिस्टर सलमान सागर साहब। सर, AQ नंबर 203, मिनिस्टर इंचार्ज रेवेन्यू। Sir, AQ number 203, Part A, the services are being delivered efficiently to the general public well within the prescribed time frame under PSGA. Part B, the existing infrastructure and manpower is being optimally used in ensure smooth delivery of services to the general public. Part C, there is no such proposal under consideration in the department. ऑनरेबल स्पीकर, ये जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने दिया हुआ है सर, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा मुझे। सर, पहले तो हम अक्सर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का हवाला देते हैं, लेकिन अगर आप इसी को देखेंगे तो अगर इसका डेटा निकाला जाएगा, पूछा जाएगा कितने लोगों को, कितने ऑफिसर्स को पेनलाइज किया गया है, पनिश किया गया, एक्शन ली गई है अगर उनने कोई काम टाइम पर नहीं किया है, लेकिन ऐसा कोई आज की डेट में शायद रिकॉर्ड नहीं है और हम कोई देखते भी नहीं है ऐसा। शायद लोग भी इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए शायद कंप्लेंट्स भी नहीं होती है। तो सर, जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का हम हवाला बार बार देते हैं रिप्लाइज में, तो मुझे लगता है ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होता है। इससे खासा कोई फ़ायदा आम आदमी को नहीं है। नहीं तो हम अक्सर देखते पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंडर जैसे ACB अगर देखती है कहीं करप्शन हो गया तो ACB की खबर आ जाती है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में हमने कभी नहीं देखा कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है, तो सर ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सर, दूसरी बात जो कहा गया कि ऑप्टिमम यूज़ होता है, ये सर ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तहसील क्रिएट की जाए कि श्रीनगर शहर में जो नॉर्थ साइड है ईदगाह और तहसील ईदगाह और तहसील नौर जो है, ये बहुत बड़े एरिया को कैटर करता है सर। ये ईदगाह, सोवरा, बसपुरा, आंचार, डगपुरा, अहमदनगर, उमरहेर, 90 फीट इलाही बाग, रंगपुरा, ओंत भवन, ये ईदगाह देखता है। तहसील नौर जो है सर, ये कैटर करता है फाक, डल, सैदा कदल, निगीन, जुकरा, गुलाब बाग, निशात, ब्रेन और दाशी गांव के एरियाज़ को। कहीं ना कहीं ये कंगन के पहाड़ से मिलता है सर
और ये ईदगाह से स्टार्ट होता है। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि ये पटवारी या तहसीलदार जो है इतना काम कर पाएंगे। इसमें सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की क़यादत में ही 2013 में तहसील और नायाब दिए गए। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सर, लोगों को इश्यूज़ होते हैं, लोन की लीन मार्क के लिए इश्यूज़ होते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देनी है, इनकम सर्टिफिकेट देनी है, फ़र्द इशू करना है, डिमार्केशन करनी है। हम जब भी तहसील ऑफिस जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं, आम आदमी जाता है, वो कहते हैं जी पटवारी साहब, तहसीलदार साहब डिजिटलाइजेशन के लिए DC ऑफिस में है। तो सर मैं नहीं समझता ये जो जवाब मिला है हमें ये सेटिस्फैक्ट्री है। ये काफ़ी ज़्यादा कार्व आउट करने की ज़रूरत है यहाँ बसपुरा के लिए तहसील एक इन बिटवीन। इन एरिया के लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, रिप्रेजेंटेशंस भी दी गई है, मगर उनका आज तक कभी कोई ये नहीं हुआ। अब्दुल्ला साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर 2014 में यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए थे और फिर कैबिनेट सब कमेटी तश्कील दी थी। कुछ नई डिमांड्स आ गई थी जम्मू कश्मीर के अतराफ से कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो रह गए हैं, तो उस पर दोबारा एक जो कमीशन है उसको बैठाया गया था और उसने कुछ रिकमेंडेशन की थी, जो बाद में उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब हमारी सरकार नहीं रही तो उनको कैबिनेट ने बेंच कर दिया। आज भी जम्मू कश्मीर के अतराफ से दूर दराज एरिया से रिप्रेजेंटेशन आती हैं और सरकार के सामने ये इश्यूज़ आ रहे हैं। जब भी कोई इस तरीके का जो है एक सरकार का एक बनेगा सिलसिला तो इनके एरिया को भी कंसीडर किया जाएगा, देखा जा सकता है। तनवीर साहब, सवाल है सर, अगर आप देखेंगे श्रीनगर सिटी जो है वो कैपिटल सिटी है सर जम्मू कश्मीर की, और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 12-13 लाख ऑफिशियल है, कितना अनऑफिशियली ज़्यादा और कितना मूव करता है सर। कंसिडरिंग कि 20,000 to 1 लाख एक तहसील को हम कंसिडर करते हैं, अगर उस हिसाब से भी हम चले तो अगर आप जिस तरह सलमान साहब ने कहा कि हमारा जो एरिया है डाउनटाउन वाला वो इतना बड़ा है और उसको केटर करने के लिए हमारे पास 7 तहसील है सर, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि किसी तरीके से 2-3 तहसील उनको इसको ऑर्गुमेंट करना पड़ेगा ताकि शहर श्रीनगर है जो केटर करता है बहुत एरिया को ठीक हो जाए। इन्होंने कहा कि बड़ा, इन्होंने कहा अब एश्योरेंस आपको मिल गया ये जिसका जिक्र ऑनरेबल मिनिस्टर ने किया कि लोग इनको रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अभी तनवीर साहब ने भी कहा, मैं कह रहा हूँ श्रीनगर की बात जहाँ तक है, अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक मिनट प्लीज़ मेरा क्वेश्चन यार, एक सेकंड सर, अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी कह रहे हैं कि कमेटी फ्रेम कर लीजिए, तो मुझे लगता है सर इस हाउस में अगर इतनी एश्योरेंस मिले कि कमेटी फ्रेम की जाएगी तो वो बड़ा बेहतर रहेगा सर। एक कमेटी फ्रेम होनी चाहिए जो ये एग्जामिन करेगी कि तहसील नायाबत बननी चाहिए कि नहीं। हाँ मजीद साहब कुछ कर रहे सर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अच्छाबल सबसे बड़ा वहाँ पे तहसील होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली सबसे बड़ा अगर डिस्ट्रिक्ट में तहसील है वो अनंतनाग है। तो जब ऑनरेबल उमर साहब वहाँ पे 2009 में इसके पास एक रिप्रेजेंटेशन आई थी कि वहाँ पे अच्छाबल को तहसील का दर्जा दिया जाए, मगर बार बार जब वो यहाँ पे आए थे, उमर साहब वहाँ पे आए थे, वहाँ पे भी लोगों की डिमांड है कि वहाँ पे तहसील आप बताइए क्या, सुनिए इनकी जवाब सुनिए आप। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये सिलसिला अगर चलता रहा तो हर ऑनरेबल एमएलए जो है उठ के अपने इलाके के लिए डिमांड्स करेगा। इस मामले को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। फ़िलहाल कहीं पे नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स खोलने का हुकूमत का कोई इरादा है नहीं, क्योंकि जो हमने खोले हैं उनको ठीक तरह से ऑपरेशनलाइज करना है, उनमें ठीक तरह से स्टाफिंग का इंतज़ाम करना है। अक्सर बेशतर ऑनरेबल एमएलएज़ मुझे मिल के आके कहते हैं आप जहाँ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट खुले हैं वहाँ दफ्तर नहीं बने, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल नहीं सकती। एक तरफ से जो हमने खोले हैं उनको पूरी तरह से पिछले सालों में ऑपरेशनलाइज किया नहीं गया है। हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको ऑपरेशनलाइज करें, उनको ठीक तरह से फंक्शनल बनाएं। उसके बाद जहाँ जहाँ हमें गैप फिल करने होंगे, जहाँ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कायम करने होंगे, वो आगे जाके हम ज़रूर कर लेंगे। मिस्टर मुबारक गुल साहब। सर, एक नंबर 95 मिनिस्टर इन चार्ज वर्क्स।
ऑनरेबल स्पीकर साहब, AQ नंबर 4667 नहीं यार, ये 67 यहाँ सर गलत है, फिर नहीं यहाँ गलत लिखा है सर। हाँ हाँ, ऑनरेबल स्पीकर साहब, AQ number 95, constituency wise, the scheme wise physical and financial details of macadamization of blacktopping of roads carried out during the year 2024-25 and 2025-26 at Annexure A. The macadamization of roads in various constituencies during the ensuing financial years under the various sectors of public schemes shall be prepared once the ceiling shall be received by the department from Finance Department. Okay. हाँ, आप पूछिए। जब बोलेंगे मैं उठूंगा फिर। पूछिए, कोई बात। थैंक यू सर। जनाब स्पीकर साहब, मैंने ये जानबूझ के सवाल उठाया क्योंकि मेरे इलाके के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है और जो एनेक्चर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने दिया है, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया है, वर्क्स मिनिस्टर ने दिया है, इसमें 2024-25 के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 3 किलोमीटर, ओनली 3 किलोमीटर्स, और उसके बाद 10 ये इसमें 24-26 में 10 किलोमीटर कुल दिया गया। आपको पता है कि शहर में न नबार्ड है, न PMGSY है, न सेंट्रल फॉरवर्ड स्कीमें हैं, न कुछ है। शहर के लिए जो इन्होंने रखा था प्रोविजन, वो इन्होंने फुलफिल नहीं किया, बड़ी नाबराबरी है। और मैं जब देखता हूँ ये एनेक्चर 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर शहर भी है आपका, लेकिन हम तो गार्बेज के लिए तो नहीं है, हमारा गार्बेज असर में पड़ेगा तो काम नहीं होगा। ये मेरी गुजारिश होगी चीफ मिनिस्टर साहब से और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, जो उन्होंने आज बजट में 35,000 किलोमीटर का मैगडम रखा है, जो मैंने जानबूझ के दूसरा इसमें पार्ट रखा है। क्या ये एश्योर करेंगे मुझे कि जो नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई है मेरे इलाके के साथ, ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, क्या ये उसमें मुझे मदद करेंगे? क्या मुझे अच्छा खासा कुछ दे देंगे मैगडम, ताकि मेरे इलाके के लोग, जो रियासत जम्मू कश्मीर का एक दिल है शहरी खास, उसकी सड़कें भी ठीक हों। एक तो ये चाहता हूँ। दूसरा जो ये स्कीमें हैं, ये कोई बाइबल नहीं है, कोई कुरान शरीफ नहीं है, कोई भगवान गीता नहीं है कि शहर को नबार्ड नहीं मिलेगा, PM जैसे नहीं मिलेगा, सेंट्रल स्पॉट स्कीमें नहीं मिलेंगी, नई स्कीमें नहीं आई। अब देखिए स्पीकर साहब, आप जाएंगे श्रीनगर, अगर सुबह जाना होगा ना, गाड़ी को जाम में 4 घंटे, वो डेथ भी हुई होगी पेशेंट की, फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है श्रीनगर में। मैंने बार मिनिस्टर साहब का, यंग मिनिस्टर, हम भी जब यंग आए इधर, हम भी बड़े तेज़ थे, लेकिन आप थोड़ा शहर की तरफ भी घूमिए। मैंने आपको इन्वाइट किया है, वेलकम देयर। शहरी खास में कितनी पुरानी सड़कें हैं, कितना मुसीबत है, ये देख लीजिए आप। यही मैं चाहता हूँ कि एक एश्योरेंस ये मुझे दे देंगे कि मेरे इलाके को इंसाफ करेंगे आगे 2024-27 के लिए। और दूसरा फिर बयान देता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुबारक साहब बड़े सीनियर हमारे लीडर हैं और ऑनरेबल MLA हैं। इनका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है और लास्ट ईयर काफ़ी चीज़ें हमने कंपनसेट करने की कोशिश की, और इसमें सारी सड़कें RNB के अंडर नहीं आती इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की। इसमें 5.5 मीटर और विद SMCs, और जो 5.5 जो है वो RNB के साथ है, आधी उधर है आधी इधर है। लेकिन फिर भी जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अब क्योंकि ये तो शहर से हैं, ओवरऑल हमारा जो क्राइटेरिया ज़्यादा जो रूरल एरिया में रहता है CD ब्लॉक रहता है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं होता कि हर ब्लॉक को बराबर की हिस्सेदारी मिले। रही बात कि ऑनरेबल MLA साहब का बड़ा सारों का कंसर्न ये होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी प्रायोरिटीज़ होते हैं, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इनकी प्रायोरिटीज़ ली जाएँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुबारक साहब ने जो एक बात रखी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को पिछली बार अगर कोई कमी पेशी आई है तो बैठ के इनसे बात कर लेंगे और उस कमी पेशी को दूर कर देंगे। चलिए, सर तो आपको तो क्लियर
तारिक अहमद ने स्पीच दी क्वेश्चन के, तारिक अहमद साहब मेरी बात सुनिए, जो हम बोलते हैं तो सेकंड सेवर मीटिंग उन्होंने डिस्कस किया क्वेश्चन होता है, ब्लड पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। मेरी बात सुनिए स्पीकर साहब, शायद आप मेरा सुनना नहीं चाहते आप। मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने मैग्नम डाला मेरे इलाके में वो उठ गया, उसकी क्वालिटी कहाँ थी। और मैं एक चाहता हूँ कि मैंने, और जो अफसर लोग हैं वो भी लाइट लेते हैं एमएलए को, मैंने अफसरों को बुलाया। अब मैं इसको कहूँगा आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मेरे इलाके में वागनपोरा ईदगाह तहसील रोड, अगर उसकी हालत देखेंगे आप कितनी ख़राब है। मैंने उसको बुलाया मीटिंग में, मैंने वहाँ उससे बात की, मैंने कहा इसको ये डालो, मेटल डालो, ज़रूरी नहीं है मैग्नम डालो। मैं आपको एक उदाहरण दे दूँगा स्पीकर साहब कि मेरे इलाके में टाकनवारी का इलाका है, मैग्नम पड़ा दूसरे दिन गायब हो गया। क्या what steps has taken by the minister, honorable minister, deputy chief minister to see the quality control of the magnum? और मेरे ख्याल में इनको एक कमेटी बनानी चाहिए। मैंने कहूँगा हाउस कमेटी से काम रुकेगा, अपने डिपार्टमेंट की कमेटी बनानी चाहिए और देखना चाहिए जहाँ जहाँ मैग्नम पड़ा क्या वो है वहाँ के नहीं। यहाँ जब फूड इलेक्ट्रिशियन तो मैग्नम की बात ही नहीं है। ये मैग्नम को आप देखिए जो मेरे टाकनवारी में वहाँ मंगाए रिपोर्ट आप ऑनलाइन, मेरे जो सड़क की बात कर रहा हूँ वो भी मंगाया, वो भी देखिए आप ना। ईदगाह वांगनपोरा ग्रिड रोड, यहाँ में तहसील ईदगाह जो उमर साहब बोल रहे थे, ये अच्छा बोल रहे थे। मेरा जो ईदगाह का है ना ये ऑफिस, वो ऑर्फनेज होम है, ऑर्फनेज होम है जो मैंने बनाया। और गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दौर में जब कोई नहीं मिला, मेरे यतीम खाने में डाला वहाँ ऑफिस। अब तो दिया उमर साहब ने, आई एम ग्रेटफुल फॉर द उमर साहब, इसने पैसे दिए तहसील बन। लेकिन इस वक्त यतीम खाने में ओल्ड एज होम में तहसील ईदगाह चल रहा है। ये मैं आपको कहूँ क्वालिटी देखिए, ये जो आता है ना मैग्नम सारा डुप्लीकेट है। और आप इस पर एक टीम भेजिए जो मेरे इलाके में चाकरवारी में जाए, उठ गया मैग्नम। साहब, ऑनरेबल स्पीकर सर वो बैठ गए, आप मेरी तरफ देखें, अब थोड़ा मेरे तरफ नजरें इनायत कर लें। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जहाँ तक इन्होंने बात कही ऑनरेबल एमएलए मुबारक गुल साहब ने, सीनियर हैं, मैं ओवरऑल सब यहाँ इस हाउस में ऑनरेबल एमएलए सभी को इंश्योर करना चाहता हूँ, जहाँ तक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऑफिसरान का ताल्लुक है, कोई भी ऑफिसर्स, मैंने उनको डायरेक्शन दिए हैं कि विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑनरेबल एमएलए या इनसे सलाह मशवरा किए बगैर वो कोई भी प्रोजेक्ट आगे फाइनलाइज नहीं करेंगे, और कोई करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर इनको इनकी बात नहीं मानेगा, इनके साथ बदतमीजी करेगा, जैसे कहते हैं उन्होंने बदतमीजी की, मीटिंग में नहीं आया, तो वो सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, एसीएस मेरे बैठे हैं, वो ये नोट करें, और जहाँ जिस रोड का पर्टिकुलर उन्होंने मेंशन किया है उसकी मैं इंक्वायरी वो एक डिटेल में जाते फिर दूसरे बोल दिया सर। दोनों के लिए बोल रहा हूँ यार, ऑनरेबल पूछे आपने वहाँ जाके सीएम साहब ने भी कहा था कि एमएलए के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं हो, लेकिन दो काम जो है मेरे बिना कंसेंट के वहाँ पर आए हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए। देखिए ऑनरेबल एमएलए साहब, अपना चंद्रप्रकाश गंगा साहब, आप ऑनरेबल फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास कुछ लोग भी आते हैं, उनकी भी कंसिडर करनी है। खाली देखिए जहाँ तक आपका ताल्लुक है, आपको पूरा रिस्पेक्ट मिलेगी, आपका पूरी प्रायोरिटीज़ को कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद हम आपको देते हैं तो बोनस हो गया आपके लिए। तो इसलिए उसमें हाँ, एक मिनट यार, फयाज मीर साहब सुनिए, पहले बोलने तो दीजिए यार। रुकिए यार, रुकिए, ये जवाब दे रहा है, ये खत्म। आप मुझे जवाब देने देंगे या पहले बाद में बोलेंगे? बोले आप। स्टेट भी तोड़ दी, स्पेशल स्टेटस भी, अभी तसल्ली नहीं हुई आपको पीडीपी वालों को? बैठो आराम से, आपसे नहीं बोल रहा मैं, इनसे बोल रहा हूँ। चलो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन तोड़ने में नहीं था ना, मैं तोड़ने का टाइम नहीं था, जब आपने तोड़ा उसमें नहीं था, उसमें आप ही थे, जब तोड़ा उसमें मैं नहीं था, मैं आ गया था, मुझे पता आप सत्यानाश करने वाले हैं जम्मू कश्मीर का। सर मेरा एक ही है कि ये कह रहे हैं, मैंने कहीं नहीं कहा कि उन एमएलए को नहीं करेंगे या इनको करेंगे, मैंने ऑनरेबल एमएलए कहा है। इसलिए आपको एक चीज क्लैरिटी है कि कहीं मेरा डिपार्टमेंट, अगर मेरे पास आते आप मुझे कहते कि गंगा जी ये एंडोर्स कर देना, उसमें आपकी भी चलो आज कह देता, मैं आज बोलता जनाब गंगा जी मैं देते, बस गल मुक गई। सलाथिया साहब, श्यामलाल शर्मा साहब, गवांडी हो,
आप तशरीफ रखिए ना आप। चले छोड़िए इस बात को, लेकिन मैं सर जो मकसद जो इनको तो जवाब देने हैं दोनों मिनिस्टर। यार मेरा जो सवाल उनका है मेरे ऑनरेबल एमएलए साहब का जो बेसिक सर, मैं एक चीज़ है कि जो उन्होंने कहा कि मैग्डमाइजेशन का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि क्वालिटी के साथ कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जो भी मैग्डमाइजेशन का ताल्लुक है, अगर कहीं सब स्टैंडर्ड है, हमने कहा है कि तब तक उसको ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगी जब तक उसकी क्वालिटी नहीं होगी। तो इसलिए आप मुतमिन रहें, क्वालिटी से उमर साहब और उमर अब्दुल्ला सरकार का कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, ये हाउस को हम अश्योर करते हैं। दूसरी बात कि जो आपके कंसर्न्स हैं, आप यहाँ अकेले में भी आके चैम्बर में भी बात कर सकते हैं, सारा यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू। बलवत से मनकोटिया डिप्टी साहब के नोटिस में डाल। ये ईदगाह के बारे में सवाल इनके नाम पे किसने ठगी? 4, 6, 7 ये सवाल सब सुनो ना मेरी बात, साहब के नाम पे आप सुनो ना मेरी बात, आप तकरीरें कर, आप सुनो मेरी बात, आप तकरीरें करने की जरूरत नहीं है। ग्रांट्स इनकी आएंगी उस वक्त बोलिए, इनकी ग्रांट्स पर बोलिए, इस सवाल पर नहीं। ये ईदगाह का सवाल है, ईदगाह का सवाल। ऑनरेबल स्पीकर सर, AQ नंबर 467 हाँ जी, 5A 9 सर। बोलिए ना, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, बैठे नहीं आप मेरी तरफ देखिए। The UT of Jammu and Kashmir regularly takes up proposals with NABARD for sanction of projects under the RIDF, wherein assistance is primarily provided in the form of loans as per prescribed norms. Proposals are formulated and submitted in the phased manner, based on the readiness of projects and repayment capacity, and the process for the sanctions strictly in accordance with the NABARD guidelines. Part B, the village-wise and road length-wise detail of existing PWD and PMGSY road projects are annexed as Annexure A. Part C, the details of pending land compensation liability in Udhampur district with special reference to Chinani constituency are annexed as Annexure B. The delay in disbursement is attributable to factors such as pendency of court cases, land ownership disputes, and non-availability of funds for land compensation at certain stages. Part D, proposal for additional infrastructure at Lati and Patnitap are under examination with the department. The said proposals shall be considered subject to the feasibility and also availability of funds. However, there is no proposal regarding Kud and Barmeen presently under consideration of examination with this department. हाँ स्पीकर सर, एक तो मुझे मेरे सारे दोस्त यहाँ वहाँ से जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे खड़े होने पे पूरा हल्ला मच जाता है, ये मैं समझ नहीं आती। प्लीज़ स्पीकर सर, मेरा सवाल स्टार्ट ही हुआ तो पूरा हाउस खड़ा हो गया। एनीवे, इसमें मैंने मेरे क्वेश्चन का 2-3 पार्ट थे। एक तो मैंने पूछा था कि नाबार्ड में जो फंडिंग हर साल कम क्यों हो रही है। एक दूसरा था कि ये जो हमारे जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब कंपनसेशन का प्रोविज़न था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, तो उस समय का कंपनसेशन के केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अब तो कंपनसेशन का ख़त्म हो गया, फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं। तो जब वो था उस टाइम पीरियड में जो रोड बने उनका कंपनसेशन का मैंने सवाल लगाया था। और तीसरा मैंने कहा था कि जो मेरे लाठी जैसा एरिया है जहाँ पे रुकने की व्यवस्था ही नहीं है, कल कोई भी आदमी अधिकारी जाएगा, पॉलिटिकल आदमी जाएगा, दूर दराज का इलाका है, तो इसमें इन्होंने कह दिया कि फंडिंग का। तो मेरा पहला ये है, ऑनरेबल मंत्री साहब हमारे पुराने मित्र भी हैं, लेकिन पैसा कब आएगा तो उसके ऊपर मैं जानकारी चाहूँगा। फिलहाल मेरा सारे हाउस का कंसर्न सर ये है कि नाबार्ड में अगर हम बात करें, नाबार्ड में हमें लगभग 24-25 की बात करें, 22-23 की बात करें तो 1000 करोड़ के लगभग हमें पूरे स्टेट को आया। सारे एमएलएस का कंसर्न है। फिर अगर हम उससे आगे पिछले साल की बात करें 23-24 की तो लगभग 600 करोड़ के हो गया। अब इस साल की बात करें तो 300 करोड़ के लगभग है। तो हर साल नाबार्ड की जो है फंडिंग है वो कम हो रही है। तो सारे एमएलएस होंगे तो इनके 10-10, 20-20 प्रोजेक्ट जो है डिपार्टमेंट के पास पड़े हैं। तो इसमें मेरा जो क्वेरी है कि हमारा जो है यहाँ से जो नाबार्ड के लिए फंड्स के लिए प्रोजेक्ट जाते हैं तो एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री हमारा बड़ा लेट जाता है। जैसे मार्च ख़त्म हुआ तो अप्रैल मई में हमारे प्रोजेक्ट चले जाएँ, तो जब हम पहुँचते हैं वहाँ तक तो फंडिंग वहाँ पे
डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो हमारा स्पीड अप करने की ज़रूरत है, दूसरा मेरा जो मैंने आपको सवाल पूछा था कि क्या नाबार्ड में हम जो हमें पैसे कम मिल रहे हैं इसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई है, तो आपने कह दिया नो, आप तो बड़े बढ़िया मिनिस्टर हैं, लेकिन आपके ऑफिसर्स ने गलत जवाब दिया। तो आपका कोई प्लान नहीं है कि आप नहीं चाहते कि इसमें 300 के बजाय हमें 1000 करोड़ मिले, 1000 के बजाय 1500 करोड़ मिले? तो ऑफिसर ने कह दिया सीधा कि नो, हमारा कोई प्रपोजल नहीं है। तो मैं इसमें पहले सप्लीमेंट्री में जानना चाहता हूँ, क्या नाबार्ड में आप इन फ्यूचर अर्ली प्रोजेक्ट हमारे भेजेंगे ताकि कंट्री के मुकाबले में हमें जल्दी पैसा मिले? और दूसरा, इसमें जो है क्या बढ़ाएंगे इसकी जो सीलिंग है इसकी बढ़ाने के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या करेगा? ऑनरेबल स्पीकर सर, जहाँ तक ताल्लुक है नाबार्ड का, ऑनरेबल एमएलए साहब ने जिक्र किया है, बड़े सीनियर मेंबर हैं इस हाउस के, समझते भी सब कुछ हैं, जानते भी सब कुछ हैं, यारी भी पक्की है मेरी इनके साथ पूरी, कुछ में कोई वो शक नहीं है। अब जवाब दे दो सवाल। लेकिन है कि सर, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है जो सवाल इन्होंने पूछा है कि नाबार्ड हर साल कम हो रहा है, हम भी समझते हैं, हमारा भी कंसर्न है और उमर अब्दुल्ला सरकार का भी करना है कि सालों साल पिछले साल भी कम हुआ, इस साल भी कम हुआ। हम दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये टेक ओवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछले इस बार हमें जो कम मिला इसको कंपनसेट किया जाए और ज़्यादा हमें नाबार्ड की फंडिंग हो। और नाबार्ड एक ऐसी प्रोजेक्ट है जिसमें ये एक डिमांड ड्राइवन प्रोजेक्ट हैं जो ऑनरेबल एमएलए से इनकी प्रायोरिटी से होते हैं, और इस पर भी हमने सर इन सबको ऑनरेबल एमएलए को पता है, हमने इनसे ही प्रायोरिटीज़ ली थी। कोई 1000 करोड़ रुपए का हमने प्रोजेक्ट लेके 10-10 करोड़ रुपये इनको हमने कहा था कि आप प्रोजेक्ट दे दीजिए, इन्होंने दिए भी, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब वापस हमें वो आया वहाँ से सैंक्शन होके वो 375 करोड़ के लगभग आया। तो उससे हमें नुकसान हुआ है और इनको भी, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी लोगों से, तो लिहाजा अब हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल जो हम जब लाएं तो नाबार्ड में पैसा बढ़ाया जाए। और दूसरी बात, जो आपने गेस्ट हाउस के बारे में पूछा है, और जहाँ तक ताल्लुक़ है सर, कुछ जो हमारा लाटी और पत्नीटॉप का गेस्ट हाउस है, आप हमें ऑनरेबल सीएम साहब का, उमर साहब का शुक्रिया अदा करें कि ये पत्नीटॉप तो आपने वैसे मांगा नहीं, चलो हम आपके खाते में डाल देते हैं वैसे, लेकिन हम खुद चाहते कि, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन आपने मांगा नहीं, लेकिन पत्नीटॉप को हम यहाँ से गेस्ट हाउस दे रहे थे, एक बड़ा अच्छा गेस्ट हाउस बन जाए जिससे वहाँ पे आप लोग अपने लोग कोई गेस्ट वगैरह जो टूरिस्ट आते हैं उनको अकोमोडेट कर सकें। तो लिहाजा पत्नीटॉप के लिए भी प्रोसेस है और लाटी के लिए भी। दूसरा, आपने जो दूसरी जो कूद और बरमीन की बात की है, फिलहाल एज इट इज़ पहले आप 2 ही लें, ज़्यादा खाओगे तो आजा हो जाएगा मनकोटिया साहब, थोड़े जो सब्र करो। तो लिहाजा सर ये हम जो इनका मेजर जो कंसर्न था वो नवार रोड पे था, उसके लिए हम अगली बार कोशिश करेंगे ज़्यादा फंडिंग लाई जाए। सर एक तो ये कहते हैं कि हम पक्के दोस्त हैं, फिर दोस्ती में मांगा नहीं जाता है, और फिर आपने चालाकी की कि रहा पत्नीटॉप, लेकिन एमएलए रामबन को खुश किया। चलो एनीवे एक ही बात है, वो भी हमारे छोटे भाई हैं, एनीवे कोई बात नहीं। तो एक जो कंपनसेशन का मैंने कहा था कि जिला उधमपुर के अंदर अभी भी लगभग 121 रोड है, 121 रोड्स हैं जिसका ड्यू कंपनसेशन है उस समय का, जिसमें मेरी विधानसभा में लगभग 23 रोड हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कम, आप शासकीय प्रोजेक्ट आया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करिए। देखो गरीब लोग हैं, वो कोई शौकार लोग नहीं है, किसी की 2 मरले ज़मीन गई है, किसी की 10 मरले गई है, किसी की 20 मरले गई है, तो उन लोगों को एक तो उनको उसके मुकाबले में मेरा एक पड़ोसी को मिल गया, दूसरे पड़ोसी को नहीं मिला, तो जेन्युइन इशू है। तो काइंडली मैं मंत्री साहब को कहना चाहूँगा कि शासकीय के तहत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई अदर स्पेशल असिस्टेंट में अगर आपके पास नहीं है तो टेकअप करके इनका कंपनसेशन का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो भी मुआवजा है ये जल्दी लोगों को दिए जाएँ। कंपनसेशन जो हमारा कोई 1500 करोड़ रुपए का कंपनसेशन है, अभी पेंडिंग है, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे कंपनसेशन हैं जो लिटिगेशन में भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो भी जब लिटिगेशन से बाहर आएंगे उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन जो 1500 करोड़ का है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं और देने की कोशिश करेंगे। इस रियासत की बदकिस्मती जो आज ये सवाल कर रहे हैं, पिछले 6 सालों में
कोई प्रोजेक्ट स्टेट की तरफ से नहीं गया नाबार्ड को, ये सोचने की बात है। जो ही 6 साल में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आया नाबार्ड का, ना कोई रोड आया, ना कोई नहीं गया 6 साल में। अब अगर गया है, मेरी गुजारिश होगी जो मनकोटिया साहब ने कहा कि इसको बढ़ाया जाए, हम ज्यादा हक रखते हैं, क्योंकि पिछले सालों में हमको कोई नाबार्ड का प्रोजेक्ट नहीं गया, ना यहाँ से गया ना वहां से मिला। जवाब आया। तो मेरी गुजारिश होगी इसको बढ़ाया जाए। चले, कोई बात नहीं। इफ्तिकार साहब AQ 1409 मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। Sir, AQ number 655. White government order number revenue as 242 of 2014 and dated 20. Copy creation of 9 subdivisions, 50 new tehsils and 99 new neighbours were sanctioned. Koi and Dungia were created at tehsil in the said order. However, the government order number 42. Government order number 242 and was kept in abeyance till further orders, except tehsil created in Wilgam and Kalamabad in district of Wada, tehsil Singhpura and Norway in district Baramulla, tehsil Bela in district Doda and tehsil Ramsu in district Rambagh. White government order number 762. The post of SDM Bilawar has been upgraded as ये सवाल पूछेंगे। There is no proposal under consideration for establishing a separate मिनिस्टर साहब, हाँ पूछिए। सर, एक तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब वैसा नहीं है। जहां डिपार्टमेंट को सूट करता है तो वो वर्ड डेलिबरेटली मिस कर दिया जाता है। पहला मेरा ये सवाल था कि अमृत 2 जो है वो अर्बन एरियाज़ में है और वो म्युनिसिपल कौंसिल रजौरी की बात मैंने की थी और म्युनिसिपल कौंसिल गायब हो गया, सिर्फ रजौरी का लिखा। और जो प्रोजेक्ट मैंने पूछा था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसका कोई जिक्र यहाँ नहीं है। दूसरा सर, जो इन्होंने मैंने पूछा था कि कितनी पोस्ट वेकेंट हैं फील्ड स्टाफ की जो जल शक्ति डिपार्टमेंट में, तो उसमें इन्होंने आंकड़ा तो दिया और 50% पोस्ट हमारी वेकेंट है। और उसमें मैंने कहा था, पूछा था सवाल कि ये जो पोस्ट वेकेंट है इसको फिलअप करने के लिए सरकार ने क्या उस पर कदम उठाए हैं और 2025-26 तक अभी तक कितनी पोस्ट हमने, इन्होंने जवाब में लिखा कि हमने JKPSC और SSRB को रेफ़र किया। तो मैं जानना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब से कि लास्ट इस करंट ईयर तक हमने कितनी, जब से सरकार 1-1.5 साल में बनी है, कितनी पोस्ट हमने रेफ़र की है, क्योंकि डिपार्टमेंट खाली है। डेली विजर्स 2300 डेली विजर्स हैं, तो डिपार्टमेंट पूरा डेली विजर्स के ऊपर चल रहा है, तो पोस्ट वेकेंट है और कितनी उसमें किया। और तीसरी बात सर, वाटर टैक्स बड़ी धड़ल्ले से लग रहा है। इवन जहां चश्मे से लोग पानी ले रहे हैं वहां भी पानी के ऊपर टैक्स है और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पे इतना प्रेशर है कि उन्हें कहा कि आपकी सैलरी बंद की गई है क्योंकि आप वाटर टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके दो। तो जिसको आपने जल शक्ति ने नलका ही नहीं दिया, वो चश्मे से पानी ले रहा है, हैंडपंप से ले रहा है, तो उस पर मिनिस्टर साहब का क्या कहना है? सर, ये अमृत 2 के लिए जो प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ इनके एरिया में भी थन्ना मंडी में चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, और जो बाकी एरियाज़ के प्रोजेक्ट हमारे पास पीर पंजाल के काफ़ी प्रोजेक्ट आ गए हैं, पुंछ से भी है और रजौरी से भी है। अमृत 2 का इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में उसको वो प्रायोरिटाइज कर लेंगे। जहाँ तक मैन पावर का ताल्लुक है सर, कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो पिछले 5-10 साल से नहीं हो रही है। उसके लिए ऑनरेबल MLA साहब खुद भी जानते हैं, हमारे पास डेली वेजेस और CP वर्कर, कैजुअल लेबर्स और ITI ट्रेंड्स लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, और इनके एरिया में भी सर डिटेल दे दी गई है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो स्टाफ हमारे पास है उनसे काम लिया जाएगा। इनका एरिया अगर कोई कहीं दिक्कत महसूस करते हैं तो ये बताएं, वहाँ भी हम रेशनलाइज कर लेंगे स्टाफ को। और दूसरा जो JJM के इन्होंने जाहिर किया, इनकी स्कीम्स जो हैं कंप्लीट नहीं हुई हैं, उसके लिए जनाब को भी मालूम है, पूरे हाउस को मालूम है कि यहाँ पिछले
1 साल 3 महीने हो गए हमारी सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जेजेएम में हमें कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन मैं हाउस की जानकारी के लिए और मैं आज फिर मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का मैं मशकूर हूँ कि जो सपोर्ट उन्होंने इस डिपार्टमेंट की सरपरस्ती की। और जब टेक ओवर किया था हमने, उस वक्त 400 करोड़ की लाइबिलिटी थी। आज हमारे 1500 करोड़ की वर्क डन लाइबिलिटी है जेजेएम में, और ये काम जेजेएम में हमने किए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन स्कीमों को आगे लेके चलें। कुछ हमने यूटी सेक्टर में इनके एरिया में पैसा दिया है। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमारे पास समय है, उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि शायद पैसा कोई The question over is over. The question over is over.